Hello everyone. Today we'll begin with the new poem Geography lesson. This poem is an interesting one. Here it is the poet's description of a view of the city, which is an aerial view, and what questions comes to his mind while he is viewing the city from the plane. We'll quickly go through the poem to understand what he has seen and what he has understood. Before we begin with the poem, we'll just read the overview and the beginning part of the poem. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? This question could be answered by the people who easily have taken a flight someday, so they must be knowing how it looks from the sky. Neatly planned and perfect in proportion like a geometry design. It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. That means being on the ground and seeing the city and being in the sky, in the plane, and looking at the city are two different things. From the aerial view, it looks like a geometric design. Here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style, when the jet sprang into the sky. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography, that land and water attracted man, was clearly delineated. When the jet reached 10,000 feet. When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities, and to kill. From that height, it was not clear why. This poem is written by Zulfikar Ghosh. We'll continue with the poem. Now. We'll understand the meaning of the poem. We'll read the lines and understand it. When the jet sprang into the sky, that means when the flight took off, it was clear why the city had developed the way it had. That means it was very much clear that the city was looked पूरा भरा हुआ लग रहा था, जैसे कि वो कोई जगह खाली नहीं थी. बहुत क्लियर था कि सिटी कितनी डेवलप हो चुकी है. सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल. जब हम मैप पे स्केल बनाते हैं, कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो उसकी स्केल बनाते हैं हम कि इतने किलोमीटर्स के लिए एक स्केल हो गया, या जो भी हम स्केल बनाते हैं मैथ्स में आप लोगों ने सीखा होगा. तो यहाँ पे पोएट जो है उसका व्यू यही है कि 1 माइल ऊपर से 6 इंचेस जितना दिख रहा था एरियल व्यू से. There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard. ऊपर से जो व्यू था वो पूरा मेसी लग रहा था. haphazard मतलब कि पूरा यहाँ वहाँ तहस नहस हुआ. कोई भी चीज़ प्रॉपरली प्लान नहीं लग रही थी. इट वॉज अनप्लान एंड विदाउट स्टाइल, मतलब कि ऊपर से जो एरियल व्यू था, सिटी जो दिख रही थी, ऊपर से इतना मेसी लग रहा था कि कुछ भी कहीं भी बना दिया है, कोई भी कंस्ट्रक्शन कहीं पे भी किया हुआ है. नथिंग वॉज प्लान्ड एंड नथिंग वॉज इन प्रॉपर स्टाइल when the jet sprang into the sky. So basically फर्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या पता चलता है कि जब फ्लाइट स्टार्ट होती है, फ्लाइट टेक ऑफ होती है, और जब प्लेन ऊपर जाता है तो वहाँ से पोएट को नीचे सारा अनप्लान्ड सिटी दिखता है, जिसको कोई भी प्लानिंग से बनाया नहीं गया है, कोई भी पूरा उसका स्टाइल नहीं है, कोई ढंग से नहीं बनाया गया है. मोर ओवर अभी पोएट को 1 माइल 6 इंचेस के बराबर लग रहा है ऊपर से. We'll read the second paragraph. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. अब प्लेन थोड़ा और ऊपर जाता है, 10,000 फीट पहुंच चुका है, और वहाँ से बहुत क्लियरली पोएट को दिख रहा है कि कोई भी कंट्री के अंदर सिटीज़ रिवर्स के पास क्यों थी, या वैलीज़ के पास क्यों ज़्यादा घर थे, क्यों लोग ज़्यादा रह रहे थे. द लॉजिक ऑफ जोग्राफ़ी, जो हमने जोग्राफ़ी में सीखा है कि लैंड और वाटर इंसान को अट्रैक्ट करते हैं. दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन बिकॉज ज़मीन
एग्रीकल्चर के काम आती है और वाटर एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है. सो लैंड एंड वाटर हैज़ ऑलवेज अट्रैक्टेड मैन. सो द लॉजिक ऑफ जोग्राफी वॉज seeming to be true here to the poet when he was looking from the plane, that land and water had attracted man, and it was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. That means उसको ये चीज़ बहुत क्लियर हो गई थी कि कितने लोग नदी और ज़मीन, जो वैलीज़ थे, जो रिवर्स थी, उसके पास रह रहे थे. ये बहुत क्लियरली उसको समझ में आ चुका था. When the jet rose 6 miles high, सेकेंड पैराग्राफ में हमने देखा कि जेट 10,000 फीट पहुंचा था और वहाँ से उसको रिवर्स वैलीज़ जो ओवर पॉपुलेटेड थे वो सिनेरियो उसको पूरा क्लियरली से समझ आ रहा था. अब जो जेट है पोएट का वो 6 माइल्स हाई और गया है. एंड इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड. नाउ पोएट कुड नॉट सी द सिटीज़, नाउ द पोएट कुड नॉट सी द कंट्रीज़. ऊपर से सिर्फ ग्लोबल व्यू दिख रहा था. हम जो मूवीज़ में या टीवी पे जोग्राफिक चैनल्स के ऊपर देखते हैं, ग्लोब का व्यू दिखता है, ब्लू कलर का, वाइटिश कलर का जो ग्लोब दिखता है. नाउ द पोएट कुड सी ओनली दैट काइंड ऑफ ग्लोब. इट वॉज क्लियर दैट द अर्थ वॉज राउंड एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड. मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर से हम जब कोई भी एरियल व्यू देखते हैं, बहुत ऊपर से सैटेलाइट व्यू आई कैन से, तो उसमें हम ग्लोब को कैसे देखते हैं, वाइटिश एंड ब्लूइश कलर का देखते हैं. तो वो जो ब्लूइश कलर होता है दैट रिजेंबल्स वाटर, के उतना वाटर है. और आप लोगों ने जोग्राफी में भी पढ़ा है कि अर्थ हैज़ मोर वाटर देन लैंड नाउ. उसमें से भी ज़्यादा पानी यूजेबल नहीं है, सलाइन वाटर है, बट पानी है. सो हियर द पोएट इज़ वेरी मच क्लियर विद दिस. 2 फैक्ट्स पोएट को क्लियर हो गए. पहला फैक्ट कि अर्थ राउंड है, दूसरा फैक्ट कि अर्थ के ऊपर सी ज़्यादा है लैंड से. सी एज यू नो इट इज़ सलाइन वाटर. मैंने अभी आपको बताया कि पानी बहुत ज़्यादा है पर उसमें भी सलाइन वाटर ज़्यादा है. और आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ रिवर वाटर फ्रेश वाटर होता है, उसके अलावा सी और ओशंस दे आर सलाइन, सॉल्टी होते हैं. But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. सब कुछ समझ आ गया था पोएट को. जो हम आज जोग्राफी में सीखते हैं, कितनी बार हमारे क्वेश्चंस रेज होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अर्थ राउंड कैसे हो सकता है, या अगर एक्सेप्ट करते भी हैं कि अर्थ राउंड है तो हमें वो व्यू नहीं पता चलता है. जब तक हमने उसको रियलिटी में नहीं देखा हो, उसका विजुअल ना देखा हो, तब तक वो चीज़ें हमें एकदम अच्छे से माइंड में सेट नहीं होती है. तो यहाँ पे जो बहुत सारे टाइम से उसके दिमाग में क्वेश्चंस थे पोएट के, वो तो क्लियर हो गए जोग्राफी के रिलेटेड, कि कैसे इंसान वैलीज़ और रिवर्स के पास सेटल हुआ, क्यों सेटल हुआ, अर्थ ऊपर से कैसा दिखता है, लैंड कम है, सी ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, ये कहा जाता है, वो भी उसको क्लियर हो गया. बट एक चीज़ पोएट को समझ में नहीं आई कि इंसान इतने बड़े अर्थ पे रह रहा है एंड स्टिल हाउ कैन अ पर्सन, हाउ कैन मेन फाइंड वेज टू हेट ईच अदर. सबके पास सब कुछ है, नेचर ने सबको सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, सबके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, देन वाई डू दे हेट ईच अदर. वो लोग कैसे एक दूसरे से अलग होने के लिए वॉल्स बना सकते हैं, सिटीज़ को सेपरेट कर सकते हैं, बॉर्डर्स बना सकते हैं, और एक दूसरे के साथ वी यूजुअली से दैट men living on globe are global brothers, we are a family, we are a global family. तो यहाँ हम जब एक फैमिली है, हम सब एक ही रेस को बिलोंग करते हैं, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स. तो कैसे हम रास्ते ढूंढते हैं, वेज ढूंढते हैं एक दूसरे को मार डालने के लिए, एनिमिटी बढ़ाने के लिए, ये पोएट को समझ नहीं आता है. From that height, it was not clear why. From that height, 10,000 feet, 6 miles above, सब कुछ क्लियर हो गया जोग्राफिकली. बट एक ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पोएट का क्लियर नहीं हुआ, दैट वाई डू मैन किल ईच अदर, वाई डू दे हेट ईच अदर. ये चीज़ इतनी हाइट पे से भी पोएट को समझ नहीं आई. Students, I believe the poem is understood. Kindly go through the glossary once while you read the poem. It will be much more clear. This poem is written by Zulfikar Ghosh, as I said, and it is a very simple but a meaningful poem actually. I hope the poem is understood, class. Thank you.